So first I will read the problem. सबके पास calculators है? Yes. Yes, sir. Everyone Yes, is sir. available. Yes. Yes, sir. Okay. So I'm reading the problem. Calculate the quantity of earthwork of road from the following data. ठीक है? So we have to find out the earthwork in excavations for the road with the help of the following data. What is the data given for example number 5? So formation width has been given as 10 meters, whereas slope it has been given as side slope it has been given as 2:1. Formation level at starting chainage it has been given as 51.20, and falling gradient it has been given as 1 in 40. Okay. So here in this case, slope there is no as such use of cutting or filling. The for both cases it has been given as side slope. एक simple words में simple line में it has been stated as side slope. That means SC or SB both for both case it is 2. Whereas falling gradient it has been given as 1 in 40. Okay. Distances instead of chainage it has been mentioned as distance. So distance में कौन से 160, 200, 240 that chainage or the difference for distance is 40. ठीक है ना? तो 160, 20, 200, 240, 280 up to 400 तक है और 40 का intervals are there. GLC is given as 50.6, 50.7 and so on up to 50 point again 6. ठीक है? And the starting chainage or starting formation level it has been given as 51.20. Okay, so we will first try to solve this. Okay, first given data में क्या क्या given है वो first we will write down this. So width has been given as 10 meters, so I am writing down as 10 meters. Capital B is given as 10 meters. So capital B is given as 10 meters. Next which things are given? SC or SB one and the same. Slope is given as 2. C or SB दोनों में it has been given as 2. ठीक है? Whereas formation level at the starting chainage is given as FL at starting chainage is given as 51.20 meters. FL for the starting chainage it has been given as 51.20 meters. Whereas falling gradient, so gradient or we can write down as falling gradient it has been given as 1 is to 40. The falling gradient it has been given as 1 is to 40, whereas the respective distance and GLs are given. So what is the use of this falling gradient? अब ये falling gradient से and the formation level for the first chainage 51.20 we can find out the next chainage. तो वो कैसे निकालेंगे बताओ? What is the formula used to find out the FL for the remaining chainages or distances के लिए क्या formula use होगा? Everyone is there? Available है कि नहीं है? Yes. How to find out the FL of remaining chainage? FL. Previous change into falling gradient into length. अच्छा. What is the formula Change used? distance. हाँ. So next chainage. So FL FL of next chainage. Next chainage that is equals to FL of previous chainage. FL of previous chainage. और क्या था? FL of previous chainage plus or minus. But here we will take as minus or plus. यहाँ पे क्या लेंगे आप? माइनस लेंगे minus प्लस लेंगे? minus माइनस. Why? Because it is falling falling gradient. gradient. 1 upon क्या था? 1 upon gradient. 1 upon gradient and multiplied with chainage difference. Chainage difference. ठीक है? तो ये फॉर्मूला अपने पास था 1 अपॉन था. ठीक है ना? अगर लिखना है तो इसको 1 अपॉन भी लिख सकते हैं. ठीक है? तो वी कैन राइट डाउन हियर आल्सो. तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन. इसको थोड़ा सा
1 अपॉन ग्रेडियंट इंटू चेन एज, ठीक है ना, तो इंटू चेन एज डिफरेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने पास एफ एल अपॉन एफ एल ऑफ प्रीवियस चेन एज माइनस 1 अपॉन ग्रेडियंट दैट इज इनटू चेन एज डिफरेंस। अब बताओ मेरे को नेक्स्ट के लिए क्या रहेगा, वैल्यू बताओ। प्रीवियस कितना अपने पास 51.20, ठीक है, माइनस, ठीक है, 1 अपॉन ग्रेडियंट, तो 1 अपॉन ग्रेडियंट मतलब कितना गिवन है, 1 अपॉन 40, ठीक है, इंटू चेनेज डिफरेंस कितना है, अगेन 40, चेनेज 40 डिफरेंस 40, तो कितना आ रहा वैल्यू बताओ, 50.2 50.2. 50.20 मीटर्स, ठीक है। ये सबका करेक्ट है, 50.20 कैसा आया है सबको मालूम है। Yes, sir. Yes, ये sir. आई एम अवेलेबल विद द, मतलब मेरे पास इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, बट कैसा हो रहा है कि मैं रीड कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको ये प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। इवन दो आई एम हैविंग द सोल्यूशन, ये इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मेरे पास है, बट इवन दो वी विल ट्राई टू सॉल्व, एक एक स्टेप कैसा लिखते हैं, कैसा बोर्ड पे सॉल्व होता है, तो एवरी स्टेप वी विल ट्राई टू सॉल्व इन द ऑनलाइन मोड, ठीक है। यहाँ पे 50.20 सबका आया, ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। तो FL Yes, of sir. next change के लिए 50.20, नेक्स्ट अगेन FL of next change के लिए बताओ। 49.2 अब मैं डायरेक्टली अब लिखते जाऊंगा, आप फॉर्मूलेज में फिट करते जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट चेंजेस के लिए आप प्रीवियस क्या हो जाएगा, 50.20 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 50.20 लिख दूंगा यहाँ पे प्रीवियस चेंजेस के लिए। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो कितना आ रहा है बताओ, 49.2 49.2. 49.2 49.2. आ गया सबके पास। 49.2 कैसा आया, अब ये फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूँ, प्रीवियस चेंज Yes, sir. माइनस 1 अपॉन ग्रेडियंट इनटू चेंजेस डिफरेंस इज 40 फॉर एवरी, दैट इज द डिस्टेंस, जो यहाँ पे डिफरेंस है 40 का था, तो 49.2। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, ये कंफ्यूजिंग करने के लिए 1 अपॉन 40 भी ग्रेडियंट बन गया और डिफरेंस भी 40 हो गया, तो ठीक है, इट्स ओके, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है कि इट शुड नॉट बी सेम, ठीक है ना, तो ओके, ग्रेडियंट भी उतना ही है और चेंजेस भी, डिफरेंस भी उतना ही 40 है, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा सिंपल कर दिया उसने, ठीक है। तो नेक्स्ट FL बताओ, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा 49.20 का 48.2 48.2. 48.2, ठीक है। अगेन नेक्स्ट FL 47.2. 47.2 47.2, 47.2. ठीक है। नेक्स्ट FL 46.2. 46.2 46.2, नेक्स्ट FL 40.2 45.2 45.2. 45.2, ठीक है। और कहाँ तक हो गया, एक तो गिवन था अपने पास, टोटल कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लगेंगे, मतलब ऑलरेडी 1 इज गिवन, फर्स्ट इज गिवन, तो 6 रिमेनिंग लगेगा आपको। तो फर्स्ट निकाल दिए यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड हो गया, इसको नाम भी दे सकते हैं अपन, अगर इसको नाम देना है तो विल कॉल दिस एज 1, ठीक है। इसके बाद इसका नाम 20.20, इसका नाम दे दो 2, ठीक है, FL2, इसके नाम दे दो FL3, इसका नाम दे दो FL4, या फिर 1 वाज गिवन ना, ठीक है, इसका नाम दे दो 5, हो गए पूरे 6, ठीक है। 45.20 का एंड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट Yes, sir. इसमें वी हैव टू ड्रॉ टेबल, ठीक है ना, तो टेबल में अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, इज देयर एनी मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द अर्थवर्क इन एक्सकवेशंस, इज देयर एनी मेथड स्टेटेड इन द क्वेश्चन, No, sir. No, sir. No sir. तो दैट मीन्स वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अगर इवन दो द मेथड इज नॉट गिवन, तो वी कैन यूज विद हेल्प ऑफ द बोथ प्रीवियस मेथड, स्टार्टिंग जो दो मेथड्स जो थे, मीन एरिया मेथड और मिड सेक्शनल मेथड, ये दोनों से आप निकाल सकते हैं। बट वाइल सॉल्विंग अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम है जिसमें मेथड इज नॉट गिवन, तो ऑलवेज टेक द मिड सेक्शनल मेथड। व्हाई इट इज टू बी टेकन एज मिड सेक्शनल मेथड, तो मिड सेक्शनल मेथड में कैसा है कि मोर एक्यूरेट आंसर्स इट हैज बीन कैलकुलेटेड, ठीक है। क्योंकि कैसे कर रहे हैं आप, सेक्शंस जो है, क्योंकि सेक्शन इन द सेंस डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन डी, तो डी का आप क्या कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ एरिया एवरेज यू कैन यूज द मिड सेक्शनल मेथड, दैट इज द एवरेज मीन डेप्थ, ठीक है ना, डेप्थ का एवरेज लेने से ज्यादा एक्यूरेट आंसर आ रहा है, ठीक है।
तो इसके लिए ऐसे कोई प्रॉब्लम्स में व्हेन देयर मेथड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो वी कैन यूज एज मिड सेक्शनल मेथड। कौन सा लेंगे आप? मिड सेक्शनल मेथड, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम में कोई क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई मिसिंग है, तो ऐसा नहीं है कि देयर इज एन इनकरेक्ट, देयर इज डाटा इज गिवन एंड वी कैन नॉट सॉल्व द सॉल्यूशन फॉर दिस, है ना। तो ऐसा नहीं है, यू कैन यूज एनी मेथड, तो इट इज प्रेफरेबल टू यूज द मिड सेक्शनल मेथड। So we will use in today's in this that is the problem, we will use as the mid sectional method, ठीक है। तो अब इसके कौन से कॉलम्स आते हैं बताओ, जो हेड्स रहते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या रहेगा? चेनेज चेनेज Chainage. चेनेज बोलो, Chainage. डिस्टेंस बोलो, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्म में लिखा है, तो विल गिव द नेम एज डिस्टेंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले आएगा डिस्टेंस, नेक्स्ट आएगा जीएल, ग्राउंड लेवल उसके बाद क्या आएगा? फॉर्मेशन FL लेवल, FL. लेवल, उसके बाद क्या आएगा? FL एफएल के बाद क्या डेप्थ आएगा? उसके बाद क्या आएगा? डेप्थ 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 यस, डेप्थ आएगा। उसके बाद क्या आएगा? मीन डेप्थ मीन डेप्थ यस, बिकॉज वी आर यूजिंग मिड सेक्शनल मेथड, तो डेप्थ के बाद में ही मीन डेप्थ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा फिर? B into D बी इंटू डी, यस, फॉर्मूला यूज फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया। तो एरिया में दो चीज ऐड हो रही है, ठीक है। तो दो चीज ऐड हो रही है, उसका फर्स्ट वाला कंटेंट बी डी। नेक्स्ट क्या आएगा? SD square SD स्क्वायर स्क्वायर, दूसरा कंटेंट ऑफ एरिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा? फाइनली द एरिया। एरिया 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 उसके बाद में क्वांटिटी निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई होता है, तो लेंथ, ठीक है। लेंथ और उसके बाद में फाइनली द क्वांटिटी के दो कॉलम्स आएंगे, एक तो कटिंग होगा, एक तो फिलिंग होगा। लिखते वक्त दोनों कॉलम्स बनाना है आपको। इवन दो अगर वैल्यू अगर कटिंग की आती है तो पूरी कटिंग में लिखो, पूरी फिलिंग आती है पूरी फिलिंग लिखो, कुछ कटिंग कुछ फिलिंग आती है तो दोनों लिखो, जैसे भी होगा, मगर दो कॉलम बनेंगे लास्ट में, कटिंग एंड फिलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे था मेरे पास, तो यस, ये चीज़ें अपने पास थी, ठीक है ना। तो मैंने इसको डायरेक्टली ऑलरेडी इसका टेबल बना था, ठीक है। तो वी विल यूज दिस टेबल, यस। आगे चेनेज बोलो, डिस्टेंस बोलो। तो वी विल राइट डाउन फर्स्ट एज, अब इसमें वैल्यूज मेरे पास लिखी नहीं है, तो वी विल राइट डाउन द वैल्यूज फॉर दिस, ठीक है। इसके वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ अभी। वन सिक्सटी का वैल्यू था 50.6, नेक्स्ट इज 200, नेक्स्ट इज 240 एंड 280, 320, 360 एंड 400 तक है बराबर। नेक्स्ट इज 50.7, 51.2, 51.4, 51.3, 51.0 एंड 50.6। 50.0 ही है ना यहाँ पे, और कुछ है नहीं, 50.0, ठीक है ना। तो लास्ट इज 50.6, यहाँ तक आ गए सबके। अब FL वन बाय वन, फर्स्ट FL वाज गिवन 51 पॉइंट, कितना था? 51.20। तो मैंने 51.20 फर्स्ट लेवल जो गिवन था वो लिख लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो उसके बाद क्या था? 50.2 50.2 50.20, उसके बाद 49.20 49.2 48.20, 47.2 20, 46.2 2.20 एंड 45.20, 2 ठीक है। अब ये जीरो नहीं ले रहा है, ठीक है। तो 45.20 और 1 सेम, ठीक है। अब डेप्थ क्या होगा? FL माइनस GL। अब ये चीज आपको बताना है मेरे को, FL माइनस GL करते जाओ। 0.6 0.6 आ रहा है, ओके। 0.6 फर्स्ट, प्लस माइनस में, माइनस प्लस क्या आ रहा है? प्लस आ रहा प्लस है, Plus. ओके। नेक्स्ट बताओ 200 चेंज के लिए। माइनस 0.5 Minus 0.5. माइनस माइनस 0.5, 0.5 माइनस 0.5, ओके। नेक्स्ट बताओ। -2 Minus 2. माइनस माइनस 2.0 के बाद -3.2 Minus माइनस 3.2. 3.2, उसके बाद -4.1 Minus 4.1. माइनस 4.1, उसके बाद -4.8 Minus 4.8. माइनस 4.8 और -5.4 Minus 5.4. माइनस 5.4, ठीक है। तो आगे सबके ये करेक्ट आ गए आंसर्स, ठीक है, सबके आ गए। यस सर। ओके। अब देखो, स्टार्टिंग के बाद ही चेंज
ऑफ चेंज हो गया, इन द सेंस कैसा हो गया कि कटिंग से फिलिंग से कटिंग की तरफ स्टार्टिंग में आ गया। 160 में फर्स्ट वैल्यू वाज प्लस 0.6 और उसी के नेक्स्ट में आ गया 200 वैल्यूज के लिए माइनस 0.5। दैट मीन्स मैंने स्टार्ट ही किया था कि फिलिंग से कटिंग में चेंज हो गया। ठीक है, तो ओके, कहीं पे भी चेंज हो सकता है, आफ्टर 2 to 3 स्टेप्स के बाद भी हो सकता है या फिर स्टार्टिंग में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में हो गया, दैट मीन्स अब मेरे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है मीन डेप्थ। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, रो इंसर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर यूजिंग द फॉर्मूला विच हैज बीन यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया, मतलब क्वांटिटी। ठीक है, तो इसके लिए अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंसर्ट करना है एक रो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 रो इट हैज बीन इंसर्टेड हियर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया अपन ने, एक रो इंसर्ट किए हैं। ठीक है, तो वी हैव इंसर्टेड 1 रो बिकॉज इट हैज बीन चेंज फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो अब ये प्लस टू माइनस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक इंसर्ट हुआ है रो। अब while changing from this that is rising gradient sorry that is filling to cutting, तो अब 160 और इसके बीच में जो चेंज आएगा वो वैल्यू आपको निकाल के बताना है। ठीक है, एक छोटा सा फिगर आपके नोटबुक्स में ड्रॉ करो। फर्स्ट ड्रॉ द फिगर फॉर दिस, इसका एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करो और उसमें मेरे को वैल्यूज बताओ कि व्हाट इज द एक्स फॉर दिस केस। इसका एक्स बताओ जल्दी से। Draw the small figure for this and find out the value of x. कितना x आ रहा है बताओ। फिगर ड्रॉ किए, फर्स्ट क्या ड्रॉ करेंगे, एक स्मॉल लाइन ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और पॉजिटिव अपर डायरेक्शन में 0.6 लेंगे और वही लाइन के डाउनवर्ड डायरेक्शंस में माइनस 0.5 लेंगे और दोनों को कनेक्ट कर देंगे एक लाइन से। ठीक है, लाइन से कनेक्ट होने के बाद में है ना, उसकी टोटल कितनी है डिफरेंस 40 है। ठीक है, टोटल 40, तो x हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू ऑफ x टू बी कैलकुलेटेड। कितना रहा x? 21.81. यस, 21.81, sir. 21.81. 21.81, x is 21.81. Okay, 0.5 and the next value is 0.6 और माइनस 0.5। सबका रहा है x 21.81। Yes, sir. 21.81 मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। और किसी का आंसर, और किसी का नहीं आया? हाँ सर आया ना सर, चलो, ठीक है, 21.81। मतलब ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो 21.81 इज द x वैल्यू विच हैज टू बी टेकन। और कोई आंसर है, और किसी का आंसर नहीं आया? और कोई? So 21. 21.81 ही आ रहा है। ठीक है, Yes, sir. आसिफ आसिफ गुलाब का, आसिफ का आंसर आ रहा है, दानिश खान का आंसर आ रहा है, फराज कैलकुलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप लोग? यस सर। कितना आया x कैसे निकाले समझ में आया? हाउ टू फाइंड आउट x वैल्यू? सर 21.81 ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो, तो 21.81। अब मेरे को यहाँ पे सॉल्व थोड़ा सा कैसा है कि मेरे को मैं फिगर थोड़ा सॉल्व नहीं कर सकता। यहाँ पे डिजिट्स में कोई चीज़ लिख सकता हूँ बट मैं फिगर नहीं ड्रॉ कर सकता। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जो फिगर्स रहते हैं वो ऑटोकैड में ड्रॉ करता हूँ और उसको इधर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर रहे थे, इसलिए मेरे पास इसका मतलब ड्रॉ नहीं किया मैंने फिगर का। अब आप जो आंसर्स बता रहे हैं, तो दैट आंसर इज करेक्ट, दैट इज x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर में, दैट इज x is equals to 21.81 meters। 81 ही आ रहा है ना? Yes, sir. 21.81। अब क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं अपन। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज 21.81 मीटर्स, दैट इज द x डिफरेंस। ठीक है ना, 0.6 प्लस था और माइनस 0.5 था,
तो अब इन दोनों के वैल्यू बीच में जो चेंजेस की जो वैल्यू आई या फिर डिस्टेंस की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 21.81. दैट मीन्स व्हाट विल बी द वैल्यू इंटरमीडिएट इन बिटवीन दिस 160 एंड 200. तो अब कैसा करना पड़ेगा इसको, 160 प्लस 21.81 कितना आएगा बताओ. 81.81. 81.160 181.81. 181.81. 181.81. 181.81. ठीक है, ये वैल्यू करेक्ट आ गई सबकी. अब ये इंसर्ट हो गया. देखो अभी इंसर्ट क्यों किए थे अपन ने ये लाइन, हालांकि यूज इसका अभी हो रहा है. क्यों? क्योंकि वी आर यूजिंग द मिड सेक्शनल मेथड. ठीक है, तो मिड सेक्शनल मेथड होने की वजह से अभी इंसर्ट करना जरूरी हो गया था इसको. ठीक है ना, तो अभी इंसर्ट कर दिया. अगर एरिया मेथड होता तो फिर इंसर्ट तो कर देते, मगर एरिया का जब मीन होता तो जब उसका यूजफुल होता, मतलब ये लाइन का यूज कब होता, जब एरिया निकालते थे अपन एरिया मेथड में, मीन एरिया मेथड में. अब कैसा है कि मिड सेक्शनल मेथड यूज हो रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही इसका यूज आ जाएगा अभी. ठीक है, तो अब अज्यूम करो कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स द वैल्यू इज जीरो, एम्प्टी वैल्यू. तो वी आर अज्यूमिंग दिस एज जीरो. ठीक है, 181.81 हो गया. अब नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द मीन डेप्थ. अब वन बाय वन वी हैव टू फाइंड आउट द मीन डेप्थ. ठीक है, अब देखो 0.6 प्लस जीरो. अब 0 और 0.6 क्या हो गया, फिलिंग का पार्ट हो गया. 0 तो नील है, उसमें कोई फिलिंग नहीं, कटिंग नहीं, बट ये 0.6 0 से ऐड हो रहा है, मतलब ये फिलिंग बन गया. और फिलिंग की वैल्यू प्लस होती है. तो व्हाट इज दिस, 0.6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा, कितना आएगा, 0.3. 0.3. 0.3. ठीक है, 0.3. मतलब एक ही वैल्यू आई है, ओनली सिंगल वैल्यू, इट इज अंडर द फिलिंग. अब यहाँ से अब नीचे की वैल्यू कटिंग में चले जाएगी, क्योंकि 0 मिल रहा है कटिंग से, माइनस से मिल रहा है. तो 0 अब माइनस छोड़ दो. जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वंस वी हैव रिप्रेजेंट दिस इन अ डेप्थ फिगर कि माइनस हो गया प्लस हो गया, अब आगे में यूज नहीं होना. ठीक है, अब बस खत्म हो गया इसका काम. 0 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा, 0.25. 0.25. 0.25. अब 0.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 0.5 1.25. 1.25. 25. 0.25. ठीक है, अब नेक्स्ट 2, दिस 2 प्लस 3.2, ये दोनों का 2 प्लस 3.2 डिवाइडेड 2.6. 2.6. 2.6. 2.6. नेक्स्ट ये रो का बन रहा है, 3.65. मतलब 3.2 प्लस 4.1 डिवाइडेड बाई 2, 3.65. 3.65. 3.65. ठीक है, 4.1 प्लस 4.8 डिवाइडेड बाई 2, 4.45. 4.45. 4.45. लास्ट 4.8 plus 5.4 divided by 2, 5.1. 5.1. 5.10. ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव फाइंड आउट द मीन डेप्थ. ठीक है, तो ये डेप्थ अपन ने निकाले हैं, और फर्स्ट ही वैल्यू सिर्फ आ रही है फिलिंग में, बाकी सब आ रही है कटिंग में, क्योंकि ये फर्स्ट ये दोनों 0.6 प्लस 0 उसके लाइन में लिख रहे हैं. तो ये 0 पॉइंट ऊपर वाली वैल्यू फिलिंग से मिल रही है, तो फिलिंग की वैल्यू बन गई. अब 0 कटिंग से मिल रही है, दैट मीन्स ये पूरी वैल्यूज कटिंग में आ गई. तो इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं आप, या फिर एक डिफरेंट कलर्स में कर दो इसको, सो दैट इसको आइडेंटिफाई कर लो कि दिस वैल्यू इज अंडर द अंडर द कटिंग. ठीक है, ये सारे वैल्यूज कटिंग में आ गए हैं, ये सारे वैल्यूज हो गए कटिंग में, और सिर्फ एक वैल्यू 0.5 जो ब्लैक कलर में थी वो आ गई फिलिंग में. बी डी कर दो. बी सिंपल है, 10 है. 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 कितना होगा, 3. 3. 3. 3. 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, 2.5. 2.5. 2.5. 0.5. 12.5. 1.25 multiplied by 10, 12.5. 12.5. 12.55. 2.6 multiplied by 10, 26. 26. 26. 26. 3.65 multiplied by 10, 36.5. 36.5. 5. 4.45 multiplied by 10, 44.5. 5.1 multiplied by 10, 51. 51. 51. आ गए सबके वैल्यूज. ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन विद बी, कैपिटल बी, दैट इज 10. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एस डी स्क्वायर. अब यहाँ पे और ज्यादा सिंपल इसने कर दिया कि साइड स्लोप एक ही वर्ड में स्टेट कर दिया कि साइड स्लोप इन कटिंग एज वेल एज इन बैंकिंग इट इज 2. ठीक है, अगर अगेन ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी बन गया और थोड़ा सा सिंपल भी हो गया. ठीक है, तो
अब ऐसा नहीं है कि इट हैज नॉट बीन मेंशन एज सी और बी, दैट इज कटिंग और बैंकिंग, तो दैट मींस इनसफिशिएंट डाटा इज देयर एंड वी कैन लीव द क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो साइड स्लोप के एक ही वर्ड में दोनों चीजें आ गई, तो मैंने यहाँ पे अलग से स्टेटमेंट लिखा था, यहाँ पे उसको मैं हाईलाइट कर देता, एस सी एंड एस बी बोथ इज टू, ठीक है ना। एस सी और एस बी दैट इज द वैल्यू वेदर इट इज इन कटिंग और इन बैंकिंग इट इज एज टू, ठीक है। तो दैट मीन्स एक ही है वैल्यू टू, तो सबके लिए टू यूज होगा, ये तो और ज्यादा सिंपल कर दिया इसने, ठीक है। तो टू इंटू डी एम स्क्वायर, अब डी स्क्वायर मतलब ये डी नहीं लेंगे, अब डी एम स्क्वायर जो फॉर्मूला यूज होता है अपने पास, तो 2 इंटू 0.3 स्क्वायर कितना होगा, 2 0.18 इंटू पॉइंट 0.6 0.18 0.18, 2 इंटू ये वाले कॉलम्स करेंगे आप, है ना, ये कॉलम करना है आपको, ये बॉक्स में कर देता नहीं तो उसमें, ठीक है। तो ये कॉलम में आपके जो वैल्यूज है वो वैल्यूज आप यूज करेंगे आप, ठीक है। डी के वैल्यूज, अब ये वैल्यूज हो गए आपके डी के, ठीक है। ये डी अब खत्म हो गया इसका काम, ठीक है। तो 2 इंटू 0.3 स्क्वायर इज 0.18, 2 इंटू 0.25 स्क्वायर 12.5. 0.125 यस 0.125 0.125 0.125, 15 Eh? 2 इंटू 1.25 स्क्वायर, ये वाला 3.125 3.125, 25 2 इंटू 2.6 स्क्वायर, ये नेक्स्ट वैल्यू 2 इंटू 2.6, 13.52 नेक्स्ट 2 इंटू 3.65 स्क्वायर 26.645 645, और 2 इंटू 4.45 स्क्वायर 39.605 605, और लास्ट 2 इंटू 5.1 स्क्वायर 52.02 0। ये वैल्यूज करेक्ट है, सबके आंसर्स आए हैं, Yes, sir. बराबर है वैल्यूज। मैं Yes, सॉल्व sir. इसलिए कर रहा हूँ कि सो दैट यू शुड चेक विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर्स और कैलकुलेशन से, एवरी स्टूडेंट शुड चेक द सॉल्यूशंस फॉर दिस, आंसर्स फॉर दिस, ठीक है ना। तो चेक करो, इसलिए अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, हालांकि इसके सॉल्यूशन सब है अपने पास, ठीक है। बट यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट और हाउ विच स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इसलिए अपन वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। एरिया में जस्ट वी आर एडिंग दिस 3 प्लस 0.18 क्या होगा, 3.18, 1 3.18. 2.5 प्लस 0.125 2.625 5. 625, ठीक है। 12.5 प्लस 3.125 15.625 15.625, नेक्स्ट इज 26 प्लस 13.52 39.52 39.52, 36.5 plus 26.645 63.145 63.4. 145. 145, 45 44.5 plus 39.605 84.105 84.105, 0. 52.02 plus 51 103.02 103.02. 0. 2. In this way we have calculated all the values, areas के सारे values अपन ने यहाँ पे calculate कर लिए थे, ठीक है ना। अब next is again important is length। तो अब लेंथ निकालते वक्त आप जाएंगे लेंथ के कॉलम में, मतलब जो फर्स्ट कॉलम है, लेंथ निकालते वक्त यहाँ से जो वैल्यू, जो रो की आपकी लेंथ की वैल्यू निकालना है, जैसा मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे बॉक्स में, अब ये वैल्यू निकालना है मेरे को, तो जहाँ पे लिखना है वो और उसके प्रीवियस वाली फर्स्ट कॉलम से करते जाओ। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम इस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मतलब जो चेंजेज का जो डिफरेंस आया था वही मेरा फर्स्ट कॉलम बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो 181.81 माइनस 160 कितना होगा, 21.81 21.81, ठीक है, आ गया। मतलब ये यहाँ पे लिखते वक्त मैंने क्या किया, ये वैल्यू लिखना था मेरे पास, यहाँ पे वैल्यू लिखना था लेंथ के इसमें, तो मैं गया पूरे वही स्ट्रेट लाइन में चेंजेज के कॉलम में, फर्स्ट कॉलम जो लिखे थे वो वैल्यू प्लस प्रीवियस वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, ठीक है।
अब नेक्स्ट उसके नीचे भी लिखूंगा मैं, तो अगेन ये यहाँ पे जाऊंगा 200 माइनस 181.81, 200 माइनस 181.81, 18.19. 18.19. 0.19. 18.19, ठीक है 18.19. ठीक है। मतलब ये एक बार थोड़ा सा प्रिसाइज वे में और एक्यूरेट वे में आपने निकाल लिए, बाकी तो सिंपल है, ठीक है ना, बाकी डिफरेंस 40 जाएगा, ठीक है, इसमें आंख बंद करके भी लिख सकते हैं आप, बाकी 40 आ जाएगा। एक बार ये दोनों चीजें एडिशन दोनों मिला के 40 हो रहा है, और प्रॉपर वे में आपने लिख दिए है, जहाँ पे चेंज ऑफ चेंजेज होता है वो एक लाइन थोड़े से प्रॉपर वे में अब लिख दिए है, बाकी चीजें तो बहुत सिंपल है। 240 माइनस 200 इज 40, है ना, 280 माइनस 40 इज 40, 320 माइनस 280 इज 320 माइनस 280 इज अगेन 40, ठीक है, ये सब 40 आते जाएगा। अब 360 माइनस 320 इज 40, 400 माइनस 360 इज 40, ठीक है। तो रेस्ट ऑल विल बी मतलब सिंपल वे में कैलकुलेट हो जाएगा, बट ये जो स्टार्टिंग जो थे ये दो वैल्यूज, या फिर जहाँ पे भी चेंज होता है वो वैल्यूज जहाँ पे भी चेंज होगा वो थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखना है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे एक भी अगर 40 लिख दिए या फिर एक भी लिखते हो तो ऊपर नीचे हो गया 21 इंस्टेड ऑफ ऊपर में नीचे आ गया और 18 ऊपर चले गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उससे रिलेटेड क्वांटिटी करेक्ट रॉन्ग हो जाएगी, और उससे रिलेटेड टोटल कैलकुलेशंस विल आल्सो बी रॉन्ग, मतलब पूरा ही सोल्यूशन आपका रॉन्ग हो गया थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिलिंग लिखना है या फिर कटिंग लिखना है, ये दो आपने कॉलम्स तो बना लिए थे, बट वैल्यूज फिट करना है यहाँ पे। तो एरिया इंटू लेंथ भी है दोनों कॉलम्स में, बट इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि विच एरिया इज अंडर द कटिंग एरिया एंड विच एरिया इज अंडर द फिलिंग एरिया। अगेन मैं फिर से ये लाइन में जो फीड करूंगा उसके लाइन से फिर से जाऊंगा डेप्थ के कॉलम में, डेप्थ का कॉलम जो आइडेंटिफाई करेगा मेरे को कि कटिंग था क्या फिलिंग था। तो अब मैंने 0 और 0.6 ऐड किया था, तो 0.6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये फिलिंग से ऐड हुआ था, मतलब फर्स्ट वैल्यू जाएगी फिलिंग में, तो 3.18 मल्टीप्लाइड बाय 21.81, बताओ कितना आएगा। 69.35. 69.35. 35, 5. ठीक है, 69.35, दैट मीन्स ओनली द फर्स्ट वैल्यू इज अंडर द फिलिंग, क्योंकि 0.6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 था, डेप्थ के फिगर में देखते जाओ डेप्थ के कॉलम में, तो ये एक वैल्यू आ गई। अब 0.5 से ऐड हो गया था डिवाइडेड बाय 2, मतलब कटिंग से ऐड हो गया था, मतलब मैं अब कटिंग के वैल्यूज ये करूंगा मगर लिखूंगा कटिंग में। 2.625 मल्टीप्लाइड बाय 18.19 कितना आएगा। 47.75. 47.71. 7 5. 5. 5। नेक्स्ट अगेन बता दो, 3.125 सॉरी 15.625 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये दोनों हो जाएंगे। 625. यस 625. 625 Yes, sir. 39.52 मल्टीप्लाइड बाय 40, 1580.8. 1580.8 बराबर। हाँ सर. Yes, sir. 40 मल्टीप्लाइड बाय 63.145, 2525.8. 2525.8, 84.105 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये दोनों 3364.2. 64.2. 6364.2, लास्ट 103.0, 4120.8. 144120.8. 1441 नहीं सर 4120.8. 4120.8, 8. ठीक है। These are the values for cutting and filling, ठीक है। तो once again I am repeating that these things to be included in filling column and these things to be included in cutting column। कहाँ से लेके कहाँ तक फिलिंग होगा, कहाँ से लेके कहाँ तक कटिंग होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी वैल्यू यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई फिलिंग की कॉलम में, तो ये दोनों मिलके फिलिंग ज़्यादा बन जाएगा और कटिंग की वैल्यूज भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक भी वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकती है, वो डिसाइड करेगा डेप्थ का कॉलम, ठीक है ना। वंस अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डेप्थ के कॉलम को प्रॉपर वे में आपको जज करना है कि विच थिंग्स टू बी इंक्लूडेड इन कटिंग एंड विच थिंग्स टू बी इंक्लूडेड इन फिलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल है तो ये 69 तो एक ही है, बाकी का टोटल बता दो यहाँ पे। 1224.35. 1224.35. यस 1224.35 आ गया सबका।
यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे Yes, sir. टोटल क्वांटिटी इन फिलिंग दैट इज इक्वल्स टू, फिलिंग कितना आ गया 69.35 मीटर इस क्यूबिक मीटर्स तो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है आपको। टोटल क्वांटिटी इन फिलिंग दैट इज इक्वल टू 69.35 क्यूबिक मीटर्स। सेम वे वही स्टेटमेंट में फिर से लिखेंगे आप, टोटल क्वांटिटी ऑफ कटिंग दैट इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ऑफ कटिंग दैट इज इक्वल टू 12264.35 दैट इज क्यूबिक meters. यहाँ पे in this way we have calculated all the values and we have find out all the values, ठीक है। और जिसमें quantity of cutting भी निकाल गई है और quantity of filling भी हो गया। अगेन ये चीज से वही चीज जैसा मतलब रिजल्ट, ये रिजल्ट से एक चीज कंक्लूजन एक अपने मालूम किए कि कटिंग की वैल्यू ज्यादा हो रही है, फिलिंग बहुत ज्यादा कम लग रहा है मेरे को, है ना। तो कटिंग ज्यादा हो रही है और फिलिंग ज्यादा हो रहा है, मतलब जो रिमेनिंग जो मटेरियल्स रहेगा तो दैट मटेरियल्स कैन बी यूज फॉर सम अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, सम अदर रोड के लिए, या फिर सम अदर बिल्डिंग फिलिंग के लिए, है ना, फिलिंग के लिए आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इन दिस वे we have actually solved the problem on numerical based on mid sectional method which has been used as mid sectional method, ठीक है। तो यहाँ पे we will end this today's lectures in which we have solved the numerical based on the earthwork and excavators by the mid sectional method. Is that clear to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes.